पार्टी होगा। 3 तारीख तक राजा, 14 तारीख तक भाई पैसा देना थोड़ा, सैलरी खत्म हो गया है। देखा होगा सैलरी वाले लोग मंथ एंड में थोड़ा सा चाप में आ जाते हैं कि अरे अभी 28-27 से मिलिएगा, आपका भाई बहन जॉब कर रहा होगा, पैसा मांगिएगा थोड़ा सा, या स्विगी से कुछ मंगाना है, पूछेगा आज यश को 2 दिन रुक जा, बस 1 तारीख आ जाने दे, फिर हम राजा है 4 दिन का, फिर खत्म हो जाता है। बट पॉइंट क्या है, household provides the factor of production, gets money for it, so a real flow leads to a money flow. The money flow goes back to the firms in the form of factor payments, and then the goods come back to us, what we produced, in the form of final goods and services. Though again I would like to point out that in our syllabus CBSE has said that we don't have savings and investment. So this circular flow of income, 2 sector model without savings and investment approach, but it's a very simple concept. Mehak, what if we assume they were investments, sorry savings? So household क्या करेगा ना, save करेगा middleman में, financial sector, financial institutions पे, banks, stock market, LIC, whatever you want to call them. How do you think this LIC, banks make money? Shambhavi, how does a bank make money? तो हमसे लेता है पैसा 6% पे इंटरेस्ट, और आपको फर्दर लोन देता है 10-12% पे। तो क्या हुआ, वो डिफरेंस में पैसा कमाता है। तो ये जो लोन दे रहा है ना, किसको, इसी का नाम इन्वेस्टमेंट है। अब से सोच के देखिए एक बार कि आप लोग उठ के गए जॉब करने, सैलरी आया 100 करोड़ का, सो यहां पर गुड्स प्रोड्यूस्ड वर्थ 100 करोड़, money received worth 100 crores. Vidhi, you are representing all of household. 90 crores spent. Can I say 10 crore is saving? 10 crore ये assume है idle नहीं रहेगा. It will be mobilized, as she said. Don't call it investment. Mobilized savings. Put it here. If 10 crores worth loans are provided to the firms, true false, the next round again starts with 100, because right now they have 90, you bought only goods worth 90, 10 you saved, but you saved with the bank, and the bank gives a loan to these firms of 10 crores कि जाओ लगाओ फैक्ट्री में। बाजार में जितना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था वो सेम रह गया, थैंक्स टू S equal to I, saving equal to investment. If what we save the firms put in their business via the banks, there will be an equilibrium. There will be no change in the economy. However, Trashi, is it not possible that the household saves 10 crores, but the firms only demand 8 crores worth loans? Next round goes around with how much? 2 crore less, you mean? 90 था, इनके हाथ में और कितना आया? 8. So the next circular flow of income starts with 98 crores, yes or no? Can you tell me, I'm giving you 2 words, which one do you think is correct, Rishabh? Leakage or injection? Leakage. So when savings are greater than investments, it creates a leakage. जुगल, हमने 10 करोड़ बचाया था, फर्म्स की रिक्वायरमेंट 14 करोड़ है, बैंक्स के पास तो पैसा होगा ही, तो 14 करोड़ का लोन दिया जाता है। तो क्यों, क्या लगता है बाजार में अगला राउंड कितने से घूमेगा? 104 करोड़। 4 करोड़ का क्या नाम दे सकते हैं? इंजेक्शंस। ये चैप्टर पढ़ के ना पहली बार ना मेरे को ना थोड़ा चिढ़ मचा था, सच बोल रहा हूं। जीवन भर मेरे को बताया गया था सेविंग्स अच्छी बात है, पर ये जब पहली बार चैप्टर मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज किया ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर देश में सेविंग ज्यादा होगा इकोनॉमी के लिए बुरा है। मतलब जीवन भर आप, मतलब होल लाइफ इज अ लाई वाला मोमेंट था मेरे लिए। जीवन भर आपको क्या पाल पोस कर बड़ा किया है? पैसा बचाओ, सेविंग बढ़िया, सेविंग बढ़िया। अचानक से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं, वो तो सेविंग्स इज बैड फॉर द इकोनॉमी। ये ट्रू है, बिकॉज द मोर यू सेव, the less you buy. The less you buy, the producer sells less,
the less employment, less jobs, less growth. For the macro perspective, the king is consumption. We want everybody to consume. Only places where there is consumption, there is growth. जहां लोग सामान खरीदते हैं वहीं की इकोनॉमी बढ़ती है. प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा सर. 4 बड़ी बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनीज कलकत्ता में आके बंद हो गई. पोर्शा आके बंद हो गई. बेंटली बेचारा शोरूम लगाया, बंद हो गया. Production was never an issue here. The issue is consumption. We don't have enough people buying those 5 crore cars. खर्चा करने वाले लोग नहीं है देश में हमारे, एटलीस्ट हमारे स्टेट. महाराष्ट्र की बातें होती है, मुंबई की बातें होती हैं कि अरे बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है. क्यों ग्रोथ है? इंडस्ट्री है उधर. नहीं, वहां पे इंडस्ट्री बाद में है, खर्चा पहले है. लोग खर्चते हैं तभी इंडस्ट्री सरवाइव करती है. खर्चोगे नहीं तो हर बिजनेस बंद होगा. द मोर पीपल विल स्पेंड, द मोर बिजनेसेस विल बूम. द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर मोस्ट डेवलप्ड. कोइंसिडेंस नहीं है. हाईएस्ट इन्फ्लेशन जानते हैं किस देश में है? सिंगापुर में. गए हैं आप सिंगापुर? आप देखिए, अगर आप में से कोई गया हो तो जानता होगा. ऐसा लेवल ऑफ ऑटोमेशन है ना वहां पर कि आप सोच, मतलब आप, मेरे को 4 मिनट मतलब 10 मिनट तो लग गया एयरपोर्ट में घुस के समझने के लिए ये एयरपोर्ट है कि क्या है. एक आदमी नहीं है एयरपोर्ट पे, आप जानते हैं उनके. 100% ऑटोमेशन. मतलब आपका बोर्डिंग पास जनरेशन, टू योर लगेज स्कैन, टू योर सिक्योरिटी चेक, टू योर इमिग्रेशन इज डन ऑटोमेटिकली. बोल रहा है ऐसा लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, ऐसा लेवल ऑफ ग्रोथ है. क्यों? क्योंकि खर्चा है वहां पर, लोग खर्चते हैं. लोग बोलते हैं ना मुंबई में टू मेक इट बिग इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. या बट पीपल अर्न ऑल्सो लाइक दैट. वहां पर अगर आप एक रोल का दुकान लेके बैठेंगे ना, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब सोल्ड आउट. खर्चा करने का कैपेबिलिटी है. अब वही बात आ जाता है तराशी, विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? ग्रोथ है इसीलिए कैपेबिलिटी है कि कैपेबिलिटी की वजह से कंजम्पशन है. इज कंजम्पशन डिटरमाइनिंग द ग्रोथ और ग्रोथ डिटरमाइनिंग द कंजम्पशन? दिस इज एन एज ओल्ड डिबेट कि पहले क्या आया. अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स का बात करें, पहले फैक्ट्री लगेगी. जमशेदपुर का नाम सुने? जंगल था. जमशेद जी टाटा को आइडिया आया वहां एक फैक्ट्री लगाते हैं, उन्हीं के नाम से जमशेदपुर बना. वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन आवर कंट्री है. कारण पहले फैक्ट्री लगी, वहां पर जॉब क्रिएट हुए. जॉब क्रिएट हो तो लोगों ने बोला पैसा है क्या करें. अक्षिता बोली चलो शॉपिंग करते. शॉपिंग मॉल नहीं है, किसी को बिजनेस आइडिया आया, चलो मॉल बनाते हैं. मॉल बनाने से यहाँ पे लेबर लोग को जॉब मिले, उनके पैसे हाथ में आए. उनके पैसे जब हाथ में आए, वो क्या बोले, अक्षिता जैसे हमको भी खर्चना है. कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता है सब छोटा सा देश में, कोल्ड ड्रिंक खरीदो. कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला यहाँ पे फैक्ट्री लगाता है, हजारों की जॉब्स बनते हैं. बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग बोलते हैं हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल नहीं है, स्कूल कंस्ट्रक्ट होता है. स्कूल कंस्ट्रक्ट होता है तो वहाँ के लेबरों को फिर पैसा मिलता है, वो बोलते हैं हमको भी पढ़ाना है. हायर करते हैं टीचर्स, बाहर से आते हैं. टीचर्स के हाथ में पैसा आता है, वो बोलते हैं हम यहाँ आए हैं, यहाँ रहना है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको अच्छा रहने चाहिए, घर चाहिए. तो लोग गाड़ियों की फैक्ट्री लगाते हैं, डीलरशिप लेते हैं. खेला कहाँ पे आके अटक जाता अगर खर्चा नहीं होता. प्रोडक्शन विल लीड टू ग्रोथ ओनली इफ कंजम्पशन सपोर्ट्स इट. फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाते जाओ, खर्चा नहीं करो, खत्म. लगा लो आप यहाँ पर वो जो आया था कोस्टा कॉफ़ी सेक्टर 5 में, चला नहीं, बंद हो गया. प्रॉब्लम कॉफ़ी में नहीं था, प्रॉब्लम था कि कलकत्ता उस टाइम रेडी नहीं था. कैलकाटा वॉजंट रेडी फॉर अ मल्टी ब्रांड लाइक कोस्टा कॉफ़ी. 4 साल बाद स्टारबक्स आया, हिट हो गया. Certain times certain products are not bad, thus they are ahead of their time.
थोड़ा सा पहले आ गया बेचारा। अगर आज लॉन्च होगा ना कोस्टा कॉफ़ी कलकत्ता में, जगह नहीं मिलेगा आपको रिजर्वेशन का, इंटरनेशनल ब्रांड है। पर उस टाइम पर राजारहाट उतना बड़ा सिचुएशन नहीं था, इट वॉज नॉट दैट बिग अ थिंग तब। अभी आप जानते हैं जैसे दिल्ली में होता है ना, दिल्ली और न्यू दिल्ली, राजारहाट सेक्टर 5 एरिया को ऐसे ही बोला जाता है आजकल, कैलकाटा ओल्ड, कैलकाटा न्यू, एक्शन एरिया 1, एक्शन एरिया 2, वो अलग सिटी है अब अपना, वो अलग चीजें हो रही हैं। अपने मॉल है उधर, 3 मॉल खुल चुके हैं उधर, 4 वो बन गए हैं, क्या नाम है, 5 स्टार्स, आईटी हब है उधर, डीएलएफ आईटी पार्क अगर आप देखें हैं 46 फ्लोर्स हैं उसमें, एक एक फ्लोर में 9 ऑफिस है। वहां लोग रह रहे हैं, अपना जी रहे हैं पूरा जिंदगी, जीवन विवन, वो अब प्रेफर्ड लोकेशन बन गया। 5-7 साल पहले वो सिचुएशन नहीं था। सो ग्रोथ तभी पॉसिबल है जहां कंजम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? सो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, लीकेज, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स, इंजेक्शंस, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। एनी बुक एनीबडी इज कैरिंग चलेगा, कोई भी किताब चलेगा। प्लीज रीड एक बार फ्रॉम द बिगिनिंग दैट वेदर वी आर मतलब टैकलिंग ऑल द टॉपिक्स और नॉट। ऋषभ आप पढ़ेंगे? स्टार्ट करिए सर, यहां से एकदम शुरू से। माइक्रो मैक्रो तो नहीं करना है आपको सर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सिर्फ सुनिएगा हाँ वो क्या बोल रहा है, और हम लोग वो बातें किए हैं कि नहीं। The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different factors of production, land, labor, capital and enterprise are combined together for production of goods and services. तो हाउस होल्ड ही वो प्रोवाइड करता है फर्म्स को, फर्म्स उससे गुड्स बनाते हैं, गुड्स के बदले पेमेंट करते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर, ये वाला। Firms produce services with collective efforts of factors of production supply. फर्म्स कैसे सामान बना रहे? कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Firm makes payments to factors of production in terms of rent, wages, interest and profit. और उसके बदले क्या देता है वो? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वेजेस। The household sector spends this money on the हम लोग क्या करते हैं उस पैसे का? अक्षिता पैसा उड़ाती है। We spend this on various factors of goods and services. income flows first from firms to household. पहले firms to household in the way of factor payments, and then from household to firms in the form of payment of goods and services. चलेगा? ऋषभ नेक्स्ट चीज ये वाला बाकी है, कुछ बोलेंगे आप? Stock and नहीं, एक सेकेंड, आप कुछ बोलो। पानी चाहिए आप? अक्षिता एक क्वेश्चन है सर, मैम सॉरी, इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है अगर आप हमको समझा पाएँ तो? क्या है ना, अगर आप पहले दिन आ रहे हैं तो लास्ट ईयर ना, झूठ नहीं आप बोलेंगे तो हम आपको अपना लैपटॉप में टैली का सॉफ्टवेयर दिखा सकते हैं, लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया का ना मेरा फीस मार के बच्चा लोग भाग गया। ये ट्रू है, मतलब हम बोलते गए प्लीज़ क्लियर योर फीस, प्लीज़ क्लियर योर फीस, प्लीज़ क्लियर योर फीस, नहीं दिया। अब देखिए एक लेवल तक ना हमको लगता है कि हम बोलेंगे तो दे देगा, नहीं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सो अब इस साल से क्या किए हैं, एक साथ 2 महीने का फीस ले रहे हैं। तो जैसे अगर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 मंथ्स एक साथ ले रहे हैं। तो अभी करेंटली अगर आप हमसे पूछें कि अभी तक हम कितना स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं क्लास 12 का, इस साल ग्रुप में 2-3 बच्चा आया, छोड़ा, डेमो क्लास लिया, तो टोटल में हमको लगता है 163 स्टूडेंट्स टोटल में आए थे, पर आज 155 है। इन दोनों में अंतर बता पा रहे हैं क्या है फर्क? हम आपको हेल्प क्यों कर रहे हैं? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फर्क आपको बताना है कौन सा क्या है। एक और बेटर एग्जांपल देते हैं। In the last 12 years of teaching, very proudly, I have taught on an average 300 students per year, sometimes more, sometimes less, but on average 300.
BCom, CA फाउंडेशन, मतलब सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, CS फाउंडेशन मिलाकर आप सोच लीजिए ऑन एन एवरेज 300 स्टूडेंट्स, 300 into 12 years is 3,600 students. Currently in class 12 and anticipating class 11 to be 100, 150, we think we are going to touch about 310, 320 this year. ठीक है, 320 क्या है और 3,600 क्या है? ये वाला फिर से बोलिए। हमको लगता है उल्टा है। फ्लो रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डे इज कॉल्ड अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, आपसे, त्रिषा से, अंजलि से? क्योंकि आप तीनों में एक सिमिलैरिटी, आपका अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स वाले इसको फट से पहचानेंगे। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डे, whereas trading and PL is prepared for the period of the year. तो जो for the period of the year है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और एज ऑन आज के दिन कितना स्टूडेंट है मेरे पास, उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। With that logic, sir, can you tell me the definition of national income, value of goods and services produced for value produced by normal residents, whether operating within or outside the domestic territory, for in one fiscal year? Is it on 31st March, or even if it is produced on 1st April, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, 1st October, 1st November, 1st December, 1st January, 1st February, 1st March? All of it will be accumulated. So is it a flow concept or a stock concept? It's a flow concept. But if I asked you the value of capital formation as on 31st March, उस दिन आपके पास कितना है? Stock concept. If I ask you how many or how much money have you earned in a year, that is a flow concept. What is your current bank balance is a stock concept. बुझा रहा है सर? ये पढ़ना होगा अपने को, स्टॉक वर्सेस फ्लो। Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो हो गया स्टॉक। कुछ एग्जांपल्स दिए क्या इन्होंने? हाँ सर। Stock of goods in the godown on 31st January. कितना गोडाउन में माल पड़ा है आज? साल भर में कितना बेचे हो? ये फ्लो कॉन्सेप्ट। आज अनसोल्ड कितना पड़ा है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। Stock variables are not time dimensional. They are national wealth, national capital, money supply, etc. करेक्ट है। देश में कितना पैसा है आज, है ना? आज तक कितना प्रिंट हुआ है ना? बहुत सारा तो सर्कुलेशन में नहीं है, बाहर चला गया है, लेकिन अभी सर्कुलेशन में कितना है? फ्लो, स्टॉक। आज तक कितना प्रिंट हुआ है? फर्क दिख रहा है ना? फ्लो पढ़ के सुनाइए सर। Flow variable refers to that variable is measured over a period of time. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलेगा? Production Next. of goods during the month of January. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। National income in the year 2020. नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। MCQ बोर्ड क्वेश्चन 2022। नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो एक मार्क तो उम्मीद करते हैं बच्चा राइट ही करके आया होगा। चेंजिंग है, आज, कल, परसों, हर दिन बदलता है। डायनामिक मतलब समझते हैं? डायनामिक इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक इज समथिंग दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। सो इन अ वे दैट इज डायनामिक। नेक्स्ट क्या है सर? रियल एंड मनी फ्लो। क्या फर्क होगा दोनों में? मनी में पैसा इधर उधर जाता है, रियल में गुड्स एंड सर्विसेज जाता है। थोड़ा सा पढ़ दीजिए सर, क्योंकि टेक्सचुअल रीडिंग क्लास 12 में मैक्रो है ना, थोड़ा पढ़ना होगा, नहीं तो हम लोग वर्ड्स नहीं पकड़ पाएंगे। विधि पढ़ेंगे क्या? बुक तो सेम ही आपके पास भी, मनी फ्लो, रियल फ्लो। तो दोनों बताया। हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विस दे रहा है वो भी रियल फ्लो है, और फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, अक्षिता जो खरीद रही है, वो भी फैक्टर सर्विस, वो भी रियल फ्लो ही है। और मनी फ्लो क्या है मैम?
पैसा का इधर उधर लेन देन का बात कर रहा है। अभी तक नोटिस किए शांभवी, एक बार भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं आया है अभी तक। आपको बिल्डअप किस चीज़ का है, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जुगल? हम क्या पढ़ेंगे अभी? हाउस होल्डर फर्म्स। पूछेगा क्यों, क्या अजम्पशन है, क्या नाम, मतलब कैसा सिंपल है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड इकोनॉमी है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तभी जाके वो सिंपल इकोनॉमी बनेगा। हाँ, इसीलिए आपको 2 पार्ट्स में तोड़ा है सिलेबस को। देयर इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सीबीएसई बोलता है नो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पर बोर्ड में लास्ट 2-3 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर विच इज एस इक्वल टू आई। इसके लिए सेविंग होना पड़ेगा, तो इसलिए हम पढ़ा तो दे रहे हैं, पर बुक में देखिएगा आपको वो लोग विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ाएगा। आप पढ़ लीजिए कि विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है। एस ग्रेटर देन आई तो लीकेज, आई ग्रेटर देन एस तो इंजेक्शंस। सर नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट बता आ जाइए, देखिए डायग्राम वायग्राम दिया होगा, वही सुंदर करके, मेरा जितना अगली नहीं है पर सेम है ना, इट्स द सेम थिंग। And with it there is no restriction कि it has to be inner, outer. The restriction is one dotted line and one bold line, which could be anything. For uniformity's sake, we have assumed that from now on, real flows would be dotted line and money flow would be bold line. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो उसको चेंज कर दें। इट्स लाइक यूजिंग अ लेजेंड। लेजेंड समझते हैं? कोई चीज़ को अगर आप डॉटेड लाइन से यूज़ करें तो वो उसको बता दीजिए कि क्या है। तो इनर अगर आप उसके हिसाब से बताना चाहते हैं तो मेंशन कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, कोई कंपल्शन नहीं है। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जहाँ पे हमने बात किया था नेशनल इनकम के डेफिनेशन का। उसमें सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है ये लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए ना शांभवी, बुक से पढ़ना है, थोड़ा सा बात करिए तो हम फिर से तो बहुत सुंदर सा भारत बनाएंगे। अखंड भारत, देख रहे हैं पाकिस्तान को भी ले लिए हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान चाइना तक चले गए हैं। ठीक है, अंजलि आपके लिए बनाए, प्रॉब्लम है, बढ़िया नहीं है। अब फोटो खोजने में दिक्कत होगा, मान लीजिए ना एक बार, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, इमेजिन करिए ये अमीबा नहीं है और भारत का मैप है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन फ्लैग और द इंडियन मैप, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। आउटलाइन है, वेरी बैड आउटलाइन। ये है भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसमें से क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए जानवी हमको। अब पढ़े हैं ये वाला बात, जितना भी फॉरेन एम्बेसी है ना भारत में, बहुत सारे देशों की फॉरेन एम्बेसीज है हमारे देश में, जानते हैं ना आप, यूएस एम्बेसी, चाइना एम्बेसी। अभी विवाद चल रहा था ब्रिटेन को लेकर, राहुल गांधी के स्पीच को लेकर, तो जो इंडिया में ब्रिटेन एम्बेसी है वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया इंडिया, जानते हैं? बोला हट, यहाँ से हट जाओ, हम लोग के बीच में दखलबाजी करोगे, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं रखेंगे तुम्हारे एम्बेसी के बाहर। तो इस सब एम्बेसी में हमारा टेरिटरी नहीं है ये। सो वाइल डिफाइनिंग द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, प्लीज एक्सक्लूड ऑल फॉरेन एम्बेसीज इन आवर कंट्री, एंड जितना भी दूसरा देश में हमारा इंडियन एम्बेसीज है ना, उनको इंक्लूड कर दो। So domestic territory is the political boundary of the country, excluding foreign embassies in our country, including Indian embassies. इसमें generally जो मैंने आपको शायद नहीं बताया, अभी बुक से भी रीड करेंगे, UN, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी पार्ट की टेरिटरी नहीं है।
तो अगर आपके यहाँ यूएन का एक ऑफिस है, वो कोई देश का नहीं है। तो जैसे इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस, इंडिया है, पर यूएन का ऑफिस किसी का भी नहीं है, चाहे वो फ्रांस में क्यों ना। उनको ना एक्सक्लूड कर दिया गया, किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है वो। नहीं तो फिर ऑफिस ऑफिस में झमेला हो जाता कि ये जो सर्विस है, जो काम कर रहे हैं, वो फिर इंडिया का टेरिटरी में है। तो बाय डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये स्टेटस ही नहीं दिया गया कि आप कोई भी देश का पार्ट नहीं है। एक बार ऋषभ डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन पढ़ के सुनाइए। बोल्ड में मिल जाएगा आपको, देखिए ना कहीं हम बता रहे हैं आपको। यहां पे ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए बस। Embassies, consulates and military establishments of a foreign country, नहीं लेना है, international organizations like UNO, WHO, नहीं लेना है। और क्या लेना है एक बार देख लेंगे क्या, ये वाला पार्ट। ships, aircrafts owned and operated by normal residents between 2 or more countries, fishing vessels, oil and natural gas rigs, and ये जानते हैं अक्षिता, यहाँ से लगभग 12 नॉटिकल माइल ये भारत ही है। तो सपोज यहाँ पर श्रीलंका के पहले, मतलब भारत से ही 12 नॉटिकल माइल ऑयल की रिगिंग होती है। ऑयल मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है सी से आता है। तो आज वो रिगिंग हो रहा है, करोड़ों का रिगिंग हो रहा है। किस देश का नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम पर? बोल रहा पानी है। बोला फर्क नहीं पड़ता सर, इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है। उसके बाद एक तो लड़ाई जानते हैं, आपके इको के लिए नहीं, टैक्स पर्पसेस के लिए। ये केस लॉ हुआ था, ये तो कमर्शियल पायलट है। बोलता हम भारत में उड़ा रहे हैं क्या, तो हवा में है। इंडियन होने के लिए इंडिया में अर्न करना होगा या इंडियन रेसिडेंट होना होगा। हम तो इंडिया में नहीं कमा रहे, हम तो बाहर रहते हैं। बोला आप उड़ा तो भारत में रहे हो, कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू पूरा इंडिया ही तो घूम रहे हो। बोला नहीं हम तो हवा में है। बोलता है सर सी बेड, सब सॉइल, एयर स्पेस, ये सब भारत है, एवरीथिंग इज इंडिया। हाँ, भारत के बाद जो एयर स्पेस है, जो इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, वो किसी देश का नहीं है। तो हाँ, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, तब ये बात आप करते मेरे साथ तो मैं मानता। वो एयरलाइन का प्रॉफिट होगा ना सर, पर वो जो कमर्शियल पायलट को पैसा दे रहा है, एयर होस्टेस को पैसा दे रहा है सर्विस प्रोवाइड करने का, वो एयरलाइन कहाँ का है क्या मैटर करता है? जरूरी नहीं है सर। अब क्या है, एयर इंडिया मॉरिशियस में भी ऑपरेट करता है। आप ये बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी है एयर एशिया, ये कहाँ पे है, कहाँ की कंपनी है? थाई एयरवेज, थाई कंपनी है। पर इसका ऑपरेशन भारत में कितना आप जानते हैं? भर भर के है। सिंगापुर एयरलाइंस कौन से देश की एयरलाइन है? आपको लगता है खाली वो सिंगापुर में ही उड़ती है? इंडिया टू इंडिया फ्लाइट चालू कर दी है उसने। ये नहीं कि इंडिया टू सिंगापुर, कोलकाता टू मुंबई। अब आप कैसे बोलेंगे कि ये कहाँ की कंपनी है? सो एयरलाइन के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा। एयरलाइन का प्रॉफिट कहाँ का है, वो कहाँ की कंपनी है, उस पर मैटर करेगा। सो हाउ डू यू नो दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, अब्रॉड, मॉरिशियस, मालदीव्स? जेट एयरवेज की ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में ही है क्या? अभी तो है ही नहीं। एयर इंडिया के ऑफिसेस क्या सिर्फ एयर इंडिया में ही, इंडिया में ही मिलेंगे? बाहर बहुत मिलेंगे। सो वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। स्टाफ के लिए देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, और वो उसी हिसाब से जज होगा। ये अज्यूम नहीं कर सकते कि एम्प्लॉयर यहाँ का था तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ होगा। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, शायद आपको समझ में आए। विप्रो है, विप्रो बोलते हैं जाओ यूके में काम करो। काम कहाँ कर रहे हो? अब कंपनी कहाँ की हो? इंडिया की। कहाँ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इंडिया। अब एक कंपनी उन्होंने खोली विप्रो यूके, और वहां पर उनको काम पे लगा दिया।
अब यूके में सिटीजनशिप रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक ही कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस हो एज अ रजिस्टर्ड कंपनी। देयर इज अ कोको कोला, देयर इज अ कोको कोला इंडिया, देयर इज अ यूट्यूब, ऑफिस नहीं मैम, रजिस्टर्ड कंपनी एज अ सब्सिडरी। ब्रांच का बात नहीं कर रहा हूं, डोमेस्टिक में तो आएंगे, नेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा उन लोगों, तो वो इंडिया का ही माना जाएगा। लेकिन सोचिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक छोटा बैंक खोल देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट में एम, मॉरिशस, और रजिस्टर्ड कंपनी फॉर मॉरिशस, तो एक अलग कंपनी का स्टेटस हो जाता है। समझ पा रहे? तो मैं उसका पॉइंट क्या था कि भैया एयरलाइन जहाँ का वहीं का मानिए। मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग नेशनैलिटी से अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, ये नहीं जज कर पाएंगे आप। उतना घंटा वो भारत में है एकदम। अब ये सब को निकालने में जान निकल जाएगा, इसलिए इस पर इतना लड़ाई होता नहीं है। यही तुम भारत में कितना घंटा घूम के गया, हम तुम्हारा देश में से कहाँ से ऊपर से गए। पर थ्योरेटिकली अगर बात करें, वो बोल रहा है क्या, शिप्स, वेसल्स, बोला ये सब अपना भारत माना जाएगा एज लॉन्ग एज वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में है। बोल रहा है ये भी छोड़ो, इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड है ना, वो भी भारत है। टेरिटरी के डेफिनेशन को समझना पहले जरूरी है। उसकी बात क्या है सर, नॉर्मल रेसिडेंट। मैं आपको याद है नॉर्मल रेसिडेंट को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? एनी पर्सन हु ऑर्डिनरी resides in the country and has an economic interest in the country. For example, Trashi, you are 16, 17 years old. You are not having an economic interest right now. You are a minor. So आप इंडियन नहीं है? नहीं भैया, ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री। सो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए टेस्ट क्या है? रहते कहाँ हो, घर कहाँ है, नॉर्मली कहाँ रहते हो? अभी 6 महीना के लिए आप सबैटिकल लेकर बांग्लादेश गए या यूके में रह रहे हैं, फ्रेंड के पास गए हैं, या कोई छुट्टी मनाने गए, या कोई एकेडमिक पर्पस के लिए गए, पर आप ऑर्डिनरी कहाँ रहते हो? आधार, पासपोर्ट, ये सब कहाँ है? रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ का दिखा रहे हो? नॉर्मली कहाँ रहते हो? अब वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो, वहीं पे घर ले लिए हो, अब वहीं बस गए हो, वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स हो, भारत के सिटीजन हो, आधार पासपोर्ट अभी भी भारतीय है, बाहर रहते हो, कनाडा जाके काम कर रहे हो, सिटीजन कहाँ के हो? इंडिया। रेसिडेंट कहाँ के हो? कनाडा। अब एक इंडियन कंपनी का ब्रांच है कि इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड हो गया? हाँ, तो अब वो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आ गया ना सर, वो बन गया रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रिसाइड्स विच एवर कम्स अर्लियर, या तो 1 साल बिता लो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले आओ। वही तो इंडियन कंपनी बोल रहा है। इंडियन कंपनी, पढ़ के सुनाइए ये बात, पढ़िए ना एक बार, नहीं पढ़िए ना, वही तो पढ़ के सुनाइए ना। इंडिया, इंडियन कंपनी यूके में, भारत है, एम्बेसी नहीं है विधि, एक इंडियन कंपनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस का बात नहीं कर रहा है, टेरिटरी। एक तो इंडियन कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में, इंडियन कंपनी, चलिए टेरिटरी किसका है? इज इट इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? इनकम बात ही नहीं कर रहे हम। आप बोलिए क्या पूछ रहा है वो आपसे? यूके में एक भारतीय कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, जापानीज कंपनी है, टेरिटरी किसका है? कोई